Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, District College, Bhopal. In the previous classes, we have discussed about forced vibration, in which we are driving the differential equation of motion by applying a force, a harmonic force, that is F naught sin omega t. जिसमें हमने देखा था कि एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम था, जिसमें मैंने एक F naught sin omega t का फोर्स अप्लाई किया था. That force is of again two type, that is constant magnitude 10 Newton with a frequency 20 radian, 40 radian per second or omega radian per second, and it will be it may be unbalanced force, that is rotary or reciprocal. So here I have derived the differential equation of motion for a spring mass damper system having an external harmonic force. ठीक है, तो जब इस सिस्टम में मैंने फोर्स लगाया F naught sin omega t, the FBD of that mass is mx dot plus kx plus cx dot upward, mx dot cx dot plus kx, that is damping force, that is spring force, and that is inertia force, and that is equals to F naught sin omega t. और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो it comes out to be complementary function and particular integral. तो in that complementary function will vanish after some time as there is damper is present. अगर damper वहां पर है, it may be the system is under damp. अगर under damp system है तो 2 या 3 साइकिल के बाद खत्म होगा, but at the end if damper is present then the amplitude of vibration will vanish. So complementary function will vanish after some time. There will be only one solution, that is particular integral, और particular integral में that comes out to be f naught by k sin omega t minus phi and upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. So today we are going to discuss the basic things about that solution. इसको और डिटेल में समझेंगे, एक एक पैरामीटर का इफेक्ट देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा. ये सॉल्यूशन मेरे पास आ गया है, अब इससे मैं क्या समझूं और कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं फोर्स्ड वाइब्रेशन को बाकी दो सिस्टम से, दैट इज फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन और फ्री डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम में, वो आज मुझे समझ में आया. उससे पहले मैं ये देखूं दैट R रिप्रेजेंट्स योर फ्रीक्वेंसी रेशियो, दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा है. याद रखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अब आगे आने वाले आपकी क्लासेस में. सो R विल बी ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इज फ्रीक्वेंसी रेशियो. दैट tan phi, वो याद कीजिए उस डेरिवेशन में मैंने अज्यूम किया था 2 zeta ओमेगा ओमेगा n को और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो हियर फ्रॉम दैट इक्वेशन tan phi विल बी 2 zeta ओमेगा अपॉन इनटू ओमेगा n अपॉन में ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो सिंप्लीफाई किया, यहां से ओमेगा n स्क्वायर कॉमन निकाला. इफ ओमेगा n स्क्वायर इज कॉमन तो यहां पर क्या बचेगा, ओमेगा अपॉन में ओमेगा n, एंड दैट ओमेगा n स्क्वायर कॉमन निकाला तो ओमेगा अपॉन में ओमेगा n का होल स्क्वायर. नाउ एक ओमेगा n से एक ओमेगा n कैंसिल हो गया. हियर वी गेट दैट 2 zeta ओमेगा एंड दैट ओमेगा n इज विद दिस 2 zeta ओमेगा अपॉन में ओमेगा n. In denominator we have 1 minus omega upon omega n का whole square, and that omega upon omega n represents your frequency ratio R. So tan phi will be 2 zeta R upon 1 minus R square. ठीक है. Now यहां तक आपको वहां पर उस डेरिवेशन में नहीं पता चला था, बट इसको सिंप्लीफाई करना चाहता, फेज एंगल पूछते हैं कभी कभी, तो यहां से निकल जाएगा. डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं है, यू कैन सॉल्व इट. Here that solution is representing a harmonic behavior of the amplitude of vibration. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हार्मोनिक फोर्स लग रहा है और वहां पर कोई साइन और कॉस की टर्म नहीं आएगी तो उसको मैं वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा. That sign represents कि हाँ वाइब्रेशन होंगे. दो चीजों पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं. अब तक मैंने आपको 7 टाइप के वाइब्रेशन समझा चुका हूं, जिसमें first 4 is based on your element of vibratory system, that is free vibration, forced vibration, damped vibration and undamped vibration. These are the 4 types of vibration जो कि elements of vibratory system में depend करते हैं. And again 3 type of vibration we have, that is based on the numerical problem, longitudinal, transverse and torsional vibration.
Now here we have another type of vibration, and that depends on time. First one is based on element, second one is based on the numerical problem, and third one is based on the time. तो टाइम के साथ जो भी टर्म रिप्रेजेंट होती है उसको स्टडी. तो यहां पर दो वाइब्रेशंस और दो टाइप के वाइब्रेशंस और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्टडी स्टेट वाइब्रेशन एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन. So steady state vibration are those vibration which does not depend on time or they are constant with respect to time, and transient vibration are those vibration which vary with time. As time increases or decreases, as time increases that amplitude increases or decreases. समझने की बात क्या है यहां पर, मैंने बोला कि जो वाइब्रेशन टाइम के साथ कम हो रहे हैं उन्हें मैं बोल रहा हूं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, और जो टाइम के साथ कांस्टेंट है उनको बोल रहा हूं फोर्स्ड वाइब्रेशन. यहां पर क्लिक होता है मेरा डैम्पर का काम. डैम्पर का काम क्या है? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ वाइब्रेशन. पहले जैसे ही 10 mm का 10 सेंटीमीटर 10 mm का एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ, अब डैम्पर comes into picture. अगला वाला 8 कर रहा है, फिर कम कर रहा है, फिर कम कर रहा है, and it ends. This represents your underdamped system. So in underdamped system, amplitude of vibration decay at exponentially rate. So कम हो रहे हैं with respect to time, minus zeta omega nt. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स आगे बढ़ती जाएंगी, एम्पलीट्यूड कम होते जाते हैं. तो in that case, these type of vibrations are transient vibration. But when we see that solution में जो maximum amplitude है that is x, it does not depend upon time. कैसे समझने की कोशिश करते हैं? For example, this is your again simple pendulum with a damper. जैसे ही आपने फोर्स लगाया, if it is free vibration, then free vibration होगा तो ये एक बार डिफ्लेक्ट करने के बाद वाइब्रेट करता है. बट देयर इज अ फोर्स वाइब्रेशन. जैसे ही फोर्स वाइब्रेशन मैंने लगाया, मान लीजिए मैं 5 सेकंड में 10 न्यूटन का लोड लगा रहा हूं. 5 सेकंड में 10 न्यूटन का लोड जैसे ही लगाया, ठीक है, जैसे यहां से मैंने 5 सेकंड में 10 न्यूटन का लोड लगा, तो 10 न्यूटन का लोड लग गया. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. समझने की कोशिश कीजिए यहां पर कि ये है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक जाएगा, ठीक है. जैसे ही मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया, फर्स्ट टाइम 10 न्यूटन का लोड लगाया एंड छोड़ रहा हूं यहां पर, ठीक है, यहां से छोड़ रहा हूं, 10 न्यूटन का लोड हट गया. अब पहली बार में एम्पलीट्यूड ज्यादा, दूसरी बार में थोड़े कम, तीसरी बार में कम, चौथी बार में कम, 5वें सेकंड में ये खत्म. मान लीजिए ये 7 या 8 सेकंड में खत्म होने वाले वाइब्रेशन है. हमने अंडरडैम्प्ड सिस्टम को ऐसे बनाया है कि 7 सेकंड में ये खत्म हो जाएंगे. बट अब मैं कह रहा हूं मैं हर 5 सेकंड में 10 न्यूटन का लोड लगा. जैसे ही देखिए ये मैंने लगाया, यहां तक गए, एक गया, फिर दूसरे में कम हुआ, तीसरे में कम, 5वें सेकंड तक वो इतने बचे. 6वें सेकंड में खत्म होंगे, 7वें सेकंड में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. पर जैसे ही 5वें सेकंड में आया, अगेन आ गया, अगेन वो 10 न्यूटन का लोड आया. अगेन उस 10 न्यूटन का लोड जैसे ही आया तो वो फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक यहां पहुंचे, कम हुए, कम हुए, कम हुए, कम हुए. अब 5वें सेकंड में पहुंचे और उसे 2 ही सेकंड और चाहिए थे एम्पलीट्यूड खत्म होने के लिए. अगेन एक 10 न्यूटन का लोड आ रहा है. इसका मतलब अगर डैम्पर प्रेजेंट है देन देयर इज अ ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, बट इफ देयर इज अ फोर्स ऑलवेज देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ force or constant magnitude of vibration is there. So in case of damped vibration it is transient vibration, but जब हम force vibration की बात करेंगे तो they are known as steady state vibration. तो अब आप कहोगे सर जो डेरिवेशन आपने किया उसमें तो डैम्पर लगा हुआ है. अब अगर डैम्पर लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब ट्रांजिएंट वाइब्रेशन होंगे. तो समझने की बात है बेटा कि मैंने एक लाइन लिखवाई थी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल वैनिश आफ्टर सम टाइम.
आफ्टर सम टाइम, वो सम टाइम विल बी योर ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, वो थोड़े टाइम के बाद वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, स्टेडी स्टेट हो जाएंगे। बस यही बात अपन को समझने की देरी थी कि जब भी फोर्स वाइब्रेशन है, क्यों वो लाइन लिखी थी मैंने आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वहां पर ट्रांजिएंट स्टेट वाइब्रेशन है, और अगर फोर्स प्रेजेंट है देन इट इज योर steady state vibration. So these two types of vibrations are there. मैं सिर्फ लिख देता हूं, transient vibration that is vary with respect to time, steady state vibration does not vary with respect to time. So these are the types of vibration here. अब अपन यहाँ पर देखते हैं, जब भी मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला था your harmonic motion will be x equals to x sin omega t, इस टाइप का हार्मोनिक मोशन है, that x represents your amplitude, that is maximum displacement. So in that case we have maximum displacement is this. So maximum displacement और इसको एम्पलीट्यूड अगर मैं बोलूं तो that is capital X will be equals to f naught by k, क्योंकि साइन तो हट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात करूं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, इसलिए हटता है 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब जरा इस f naught by k को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आफत क्या है। For example, if there is only one spring or in static condition, here this is your mass, ठीक है, that mg is balanced by kdel, that is you very well know, but अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि mg और that will be your f naught। अगर यहां पर एक f naught मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है तो that f naught will be equals to k x static, x naught बोल सकते हैं बट यहां पर मैं k x static यूज कर रहा हूं, ठीक है। so that f naught will be k static in static condition। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी कार है, वो जो कार है वो स्टैटिक कंडीशन पे, तो जो स्टैटिक कंडीशन में कार का वेट है that will be withstand by that force suspensions। Here when this f naught by k represents your static deflection, कि अगर वहां पर कोई हार्मोनिक टर्म नहीं है, that is sin और cos नहीं है, तो still it is present। So f naught by k will be your static deflection। बस यही याद रखना, मूल मंत्र है ये आपका फोर्स वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। सो द माय सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू x स्टैटिक अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। एंड नाउ x अपॉन में x स्टैटिक दैट इज इक्वल्स टू योर एम्पलीट्यूड रेशियो, that is equals to your amplitude ratio or magnification factor, ठीक है। that x upon x static is your amplitude ratio or magnification factor। so आपसे यहां पर पूछेगा एम्पलीट्यूड रेशियो या मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, that is equals to x upon में x static that is equals to 1 upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का। so this is all about your magnification factor। इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। So here this is amplitude ratio or magnification factor is equals to x upon x static 1 upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। समझने की बात यहाँ पर है कि ये क्यों पिक्चर में आया मैग्निफिकेशन फैक्टर।
और एम्पलीट्यूड रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये x जो है आपका, दैट x इज योर amplitude of forced vibration, that x is equals to amplitude of your forced vibration with respect to static deflection. अगर वो बॉडी पे सिर्फ एक F0 का फोर्स लग रहा है और उस पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये रखी कंडीशन। अब मैं उस सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लेकर आ रहा हूं। वर्किंग कंडीशन में आया यानी कि F0 sin ओमेगा t का फोर्स लग रहा है, अब वो फ्रीक्वेंसी के साथ लग रहा है। तो अगर वो सिस्टम स्टैटिक कंडीशन में है और मोशन में है, मोशन इट मींस वर्किंग कंडीशन में है, तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट विल रिफ्लेक्ट योर एम्पलीट्यूड रेशियो और मैग्निफिकेशन फैक्टर, दैट इज व्हेन फोर्स वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, दैट इज इन स्टैटिक कंडीशन, एंड द फार्मूला विल बी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड वाइब्रेशन का जब F0 sin ओमेगा t टाइप का फोर्स लगेगा तभी मिलता है हमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन और एम्पलीट्यूड रेशियो। स्टैटिक डिफ्लेक्शन ही एम्पलीट्यूड रेशियो। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी के केस में हम इसको ऐसे डील नहीं करेंगे। जो एम्पलीट्यूड रेशियो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ जब F0 sin ओमेगा t लग रहा है तभी। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विद अ फ्रीक्वेंसी, जब हम अनबैलेंस की बात करेंगे तो देयर आर सम डिफरेंट थ्योरीज देयर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट F0 sin ओमेगा t देन वी गेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज एम्पलीट्यूड रेशियो। तो क्या हो गया, जैसे ही आपने स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम में F0 sin ओमेगा t का फोर्स लगाया, आपने प्रॉब्लम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, दैट इज mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू F0 sin ओमेगा t। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, दैट कम्स आउट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी वैनिश आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि that comes under transient vibration, there is damper is present, after some time it will become steady state vibration। So steady state vibration, that is forced vibration, उसका solution निकाला, particular integral that comes out to be x small x equals to F0 by k sin omega t minus pi upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। Now that F0 by k represents your static deflection, जो कि आपका natural frequency निकालने के काम में आएगा। ठीक है, g under root del अपन आगे चर्चा करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, F0 by k is static deflection and maximum value of displacement is your amplitude. So maximum amplitude in case of force vibration is capital X and upon में X static represents your magnification factor and amplitude ratio, and that is equals to 1 upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का। ठीक है, तो this is all about your derivation। अब आगे हम अनबैलेंस फोर्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू।